नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किसान मंथन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जल्द सुलझाने की बात कही है। अब ऐसे में सवाल ये कि जो किसान है, जो उनका मंथन ठीक 5 बजे शुरू होना था, इस मंथन में वो किन बातों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और इस चिंतन मनन और मंथन के बाद क्या निकलेगा। 2 बैठकें कुल मिलाकर होगी और इन दोनों बैठकों से क्या निकलता है उस पर हर किसी की नजर जरूर रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है जिसमें केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार, पंजाब, यूपी और हरियाणा सरकार और तमाम सरकारें अब अपने जवाब पेश जरूर करेगी। और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है उनके बारे में भी ये तमाम राज्य बताएंगे। अब ऐसे में जो किसान हैं उनसे जब मुलाकात होगी, बात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में वो क्या पक्ष रखते हैं इस पर भी नजर जरूर रहेगी। लेकिन अभी के लिहाज से बड़ी बात यह कि किसानों की बैठक और सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों के साथ साथ प्रस्ताव पर भी बात कर सकते हैं किसान। सिंघू बॉर्डर सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से विजय ब्राड़ लगातार बने। विजय, बैठक का क्या शुरू हो चुकी है और अगर शुरू हो चुकी है तो किन अहम बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होने की उम्मीद कर सकते हैं? और इससे पहले आपकी इन किसान नेताओं से बात हुई हो तो किस तरीके का रुख इनका दिख रहा है? बिल्कुल राज, कुछ देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ? नहीं, मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਵੱਝਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ। ਉਸ ਰੋਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ सके। बिल्कुल, और कोई पत्ते खोलना भी नहीं चाहेगा इस मौके पर, या फिर कहें कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें याद आती है जिसमें ये कहा गया था कि जो ये हम कमेटी बना रहे हैं वही तमाम चीजें डिसाइड करेगी और अगर सिंगल इंडिविजुअल कोई किसान नेता कुछ कहता है तो उसे मान्य करार नहीं दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे आपके पास क्योंकि बैठक चल रही है और अहम बैठक इसे कहा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद यह बैठक और भी ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किसान मंथन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। किसान आंदोलन को लेकर हाल फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। केंद्र और किसान दोनों ही अपने स्टैंड पर अड़े हैं। इस बीच किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने भी दोहरा दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अंग्रेजी में पंजाबी में और इस तो अलावा क्या क्या
किसान और केंद्र के बीच खींचतान अभी लंबी चल सकती है। केंद्र के प्रपोजल किसान संगठनों ने खारिज कर दिए। सरकार ने ये प्रस्ताव 9 दिसंबर को भेजे थे और किसानों की मांगों के मुताबिक कानूनों में संशोधन का भरोसा दिया गया था। साझा किसान मोर्चे ने कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल को खत के जरिए लिखित में जवाब भेजा, जिसमें प्रस्ताव को नामंजूर किया। किसानों ने लिखा, आपकी तरफ से मिले प्रस्ताव और चिट्ठी के बारे आपके जरिए सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि किसान संगठनों ने उस दिन ही साझे तौर पर बैठक की और आपकी तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा की और इनको नामंजूर कर दिया, क्योंकि ये 5 दिसंबर 2020 को सरकारी नुमाइंदों की तरफ से दिए गए जुबानी प्रस्ताव का ही लिखित रूप था। हम अपनी बात पहले ही अलग अलग दौर की बातचीत में कह चुके हैं, इसलिए लिखित में जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों के साथ पैरेलल बातचीत भी बंद करे। किसानों ने साफ किया है कि दूसरे संगठनों के साथ सरकार की बातचीत पर उनको इतराज है। सरकार ने ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। उधर बीजेपी के तेवर भी तल्ख हैं। 2 टूक कह दिया गया है कि कानून वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गरेवाल के निशाने पर किसान नेता भी हैं और किसी भी नुकसान की हालत में उन्हें जिम्मेवार करार पहले से ही दिया जा रहा है। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। किसानों और केंद्र के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। और अब किसानों का जवाब उस समय आया है जब केंद्र अलग तौर पर दूसरे प्रदेशों के किसानों के साथ बात कर रहा है। हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई किसान नेता कृषि मंत्री को मिलकर नए कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली से विजयपाल बराड़ और पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब।